اللہ اکبر اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 12 ربیع الثانی 1442 ہجری، 28 نومبر 2020 عیسوی، 13 گتے اگہن 2077 بکرمی، سنیچر کا دن، میں محمد مستقیم مدنی آپ لوگوں کی خدمت میں صدائے حق کا سوال و جواب کا لائیو پروگرام لے کر حاضر ہو گیا ہوں، جو روزانہ آپ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر سماعت فرماتے آ رہے ہیں، اور ہر سنیچر کو لائیو پروگرام یعنی آپ کے سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، یہ پروگرام 2 فیس بک ID پر بھی نشر کیا جا رہا ہے۔ ایک کا ID ہے NID اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں اور اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ دوسرا جنک نندنی FM اگر آپ سرچ کر کے لکھیں گے تو وہاں ہماری باتیں سن سکتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ میرے بھائیو دوستو، یہ پروگرام آپ کی خدمت میں ایک رمضان المبارک سے مسلسل پیش کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی مسلسل پیش کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ آج کا نیپال کے لیے نمبر ہے وہی پرانا نمبر 041 590 239 041 590 239۔ اس پر آپ کال کر کے آپ اپنے سوالات رکھ سکتے ہیں اور جوابات پا سکتے ہیں۔ باہر سے، بدیش سے فون کرنے والے ساتھی 00977 یعنی 00977، پھر اس کے بعد 41، پھر اس کے بعد 590 239 ڈائل کر کے ہم سے جڑ سکتے ہیں اور اپنے سوالات کے جوابات پا سکتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ فیس بک ID NID پر بہت سارے ساتھی جڑ گئے ہیں۔ محمد صغیر عالم صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب، دبئی سے میں ہوں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صغیر صاحب ماشاءاللہ کنٹینیو ہمارا پروگرام دبئی میں رہتے ہوئے بھی سماعت فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ہر نیک خواہش کو پوری کرے۔ دربھنگا سے عبداللہ یادو صاحب، السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قطر سے شکیل رین صاحب، السلام علیکم شیخ، وعلیکم السلام۔ جاسم احمد بھی شاید کہ قطر ہی سے ہیں، ان کا سوال ہے کہ جب قضا نماز پڑھے تو اس کے ساتھ سنت نماز بھی پڑھنا ضروری ہے یا نہیں؟ یہ پہلا سوال آیا فیس بک NID پر جاسم صاحب کا۔ دیکھیے، سنت پڑھنا کسی بھی وقت ضروری نہیں ہے، چاہے وہ قضا پڑھیں چاہے غیر قضا پڑھیں۔ ہاں، سنتوں میں 12 رکعت سنتیں ہیں جن کو سنن مؤکدہ کہتے ہیں، ان کا پڑھنا بہت ہی ثواب کا باعث ہے، بہت ہی بہتر ہے، اور بلا ضرورت بلا عذر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ لیکن پڑھنا ضروری صرف فرض نماز ہے، فرض نماز پڑھنا ضروری ہے۔ تو آپ اگر قضا نماز پڑھ رہے ہیں تو اگر سنت کی ادائیگی یعنی سنت کی بھی قضا کرنا چاہتے ہیں تو بہتر بات ہے، وہ نوافل میں آپ کا شمار ہوگا۔ اور اگر نہیں چاہتے ہیں تو کوئی مشکل کی بات نہیں ہے، آپ فرض نماز کی قضا کر لیں، آپ فرض نماز کی قضا کر لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی میں جو ہے آپ کی نماز
हो जाएगी। उम्मीद के जासिम साहब अपने सवाल का जवाब पा लिए होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सारे लोगों को दीन की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों दोस्तों, आज का नंबर खुल गया है 041 590 239। इस पर आप कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं और अपने सवालात के जवाबात पा सकते हैं। इसी तरीके से जब तक किसी भाई का सवाल नहीं आ रहा है तो मैं चाहता हूं कि व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोगों के सवालात आए हैं, तो मैं चाहता हूं कि उनका भी जवाब दिया जाए ताकि वक्त को जो है अच्छे काम में लगाया जाए। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अगर तुम्हें जानकारी न हो तो जानकार लोगों से पूछ लो, आलिमों से पूछ लो। तो इस आयत के पेश नज़र चाहिए कि आप जो है सवालात करें और सवालात के जवाबात पाने की कोशिश करें। आपका एक सवाल हो सकता है कई लोगों को फ़ायदा पहुंचाए और आप वहां सवाब के हकदार हों। फिर एक जुड़े हुए हैं गुलशने शेर शाह आबादी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलीम शाकिर खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवालात करें तो इंशाअल्लाह ताला जवाबात पाएंगे। व्हाट्सएप पर जो सवाल आया हुआ है पहला, गुनाह के बाद तौबा कैसे किया जाए, मुफस्सल बताएं। शकील रायन कतर से जवाबन अर्ज है कि गुनाह के बाद अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर सिद्क दिल से तौबा करना ज़रूरी है। सिद्क दिल से तौबा करना ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, कि मोमिनो अल्लाह से सिद्क दिल से तौबा करो। आशा रब्बुकुम युकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम, करीब है कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दे। वयुदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिल अनहार, और ऐसी जन्नतों में तुम्हें दाखिल करें कि जिसके नीचे नहरें जारी हैं। सूरह तहरीम आयत नंबर 8। दूसरी आयत में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून, और ए लोगो, ए मुसलमानों, तुम तमाम के तमाम, ए मोमिनो तमाम के तमाम अल्लाह से तौबा करो, रुजू करो, शायद कि तुम लोग कामयाबी हासिल कर सको। सूरह नूर आयत नंबर 31। मेरे भाइयों, ये बात ज़हन नशी कर लें कि अल्लाह ताला सारे गुनाहों को माफ़ करने वाला है और उससे माफ़ी मांगने के लिए बीच में किसी वास्ते और वसीले की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि हम बहुत बड़े गुनाहगार हैं, हम अल्लाह तबारक व तआला से कैसे माफ़ी मांगेंगे, हम किस मुंह से अल्लाह तबारक व तआला को दिखाएंगे। तो आपका गुनाहगार चेहरा, आपका गुनाह के बाद हाथ उठाना अल्लाह तबारक व तआला को बहुत पसंद है। इसीलिए उस गुनाहगार बंदे के दरमियान और अल्लाह अपने दरमियान किसी वसीले की ज़रूरत महसूस नहीं किया। इसलिए किसी की भी ज़रूरत नहीं है कि फलां फलां को पुकारें और वो आपकी दुआ को अल्लाह के करीब कर दे, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारे रब ने फरमाया है कि तुम मुझे डायरेक्ट पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार सुनूंगा। सूरह गाफिर आयत नंबर 60। नीस फरमाया, वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावत दाई इज़ा दआन। क्या नबी मुहतरम, आपसे मेरे बंदे सवाल करते हैं मेरे बारे में कि मैं कहाँ हूँ, तो आप फरमा दीजिए कि वो तो करीब है, पुकारने वाले की पुकार सुनता है जबकि वो पुकारता है। तो इन सारी चीज़ों से पता चला कि अल्लाह तबारक व तआला डायरेक्ट पुकार को सुनने वाला है। एक हदीस में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, लंबी हदीस है कि यक़ूलुल्लाह अज़्ज़ा वजल मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा व अज़ीद, कि जो एक नेकी लाएगा उसे मैं 10 नेकियां दूंगा और उससे भी ज़्यादा। जो एक बुराई लाएगा तो उसी के बराबर जो है उसे गुनाह लिखा जाएगा, या एक मैं माफ़ कर दूं। वमन तक़र्रब मिन्नी शिबरन तक़र्रबतु मिन्हु ज़िराअन, और जो मुझसे एक बालिश्त करीब होगा मैं उससे एक हाथ करीब होऊंगा। वमन तक़र्रब मिन्नी ज़िराअन
तक़र्रबतु मिन्हु बअन, और जो मुझसे एक हाथ करीब होगा मैं उसको पूरे हाथ बांह तक मैं करीब हो जाऊंगा। वमन आतानी यमशी आतैतु हरवलतन, वमन आतानी यमशी आतैतु हरवलतन, और जो मेरे पास चलते हुए आएगा मैं उससे दौड़ते हुए उसके करीब जाऊंगा। ये अल्लाह की शान है। और ये सुनिए, वमन लक़ियनी बिक़ुराबिल अर्द खतियतन, और जो मुझसे जमीन के बराबर गुनाह लेकर मुलाकात करेगा, लेकिन शर्त है ला युशरिकु बि शैअन, मुझसे वो मेरे साथ किसी को शरीक नहीं ठहराया होगा, लक़ीतुहु बिमिस्लिहा मग़फ़िरतन, तो मैं उससे उसी के बराबर मग़फ़िरत ला करके उसके करीब हो जाऊंगा। मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 2687। खुलासा कलाम यह हुआ कि तौबा करने वाले बंदा और तौबा कबूल करने वाले रब करीम के दरमियान कोई वसीला और कोई वास्ता नहीं है। और गुनाह करने के बाद बंदे को अल्लाह की रहमत और मग़फ़िरत से मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफ़ुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीअ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। ऐ नबी मोहतरम, आप फरमा दीजिए मेरे बंदों से कि ऐ मेरे बंदे, वो लोग जो अपने नफ्सों पर जुल्म किए हुए हैं, अल्लाह की रहमत से नाउमीद मत हो जाना। अल्लाह सारे गुनाहों को माफ़ करने वाला है और वो जो है रहम करने वाला और बख्शने वाला है। सूरह ज़मर आयत नंबर 53। इन बातों को ज़हन में रखते हुए अब आइए साइल के सवाल की तरफ हम तो मुतवज्जह होते हैं कि तौबा कैसे करें। मेरे भाइयों दोस्तों, गुनाह सरजद होने के बाद फौरन अल्लाह ताला के हुजूर नादिम होकर सिद्क़ दिल से तौबा करना चाहिए। और तौबा की कबूलियत के लिए चंद शरायत हैं जिनको ज़हन में रखना ज़रूरी है। और वो ये है, पहली शर्त इखलास लिल्लाह ताला, यानी खालिस दिल से तौबा करें। ये नहीं कि किसी के दिखावे के लिए या लोग कहें कि देखो ये गुनाह के बाद तौबा कर ले, नहीं, खालिस दिल से तौबा करें। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इल्लल्लज़ीना ताबू व असलहू व अतसमू बिल्लाह व अखलसू दीनहुम लिल्लाह उलाइका मअल मुमिनीन, मगर वो लोग जिन्होंने तौबा किया और नेक बन गए, फिर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ा और अल्लाह ही के लिए इन सारी चीज़ों को इखलास के साथ पेश किया, तो यही लोग मोमिनों में से है। तो पहली शर्त क्या है? इखलास होना चाहिए। दूसरी शर्त कि जिस गुनाह से इंसान तौबा कर रहा उस गुनाह से मुकम्मल अलग थलग हो जाए। ऐसा ना कि गुनाह में मुलविस भी हो और तौबा भी करे, गुनाह में मुलविस भी हो तौबा भी करे, सिगरेट पीने से, बीड़ी पीने से, खैनी खाने से, गुटखा खाने से तौबा भी करे और फिर खाए भी, तो उसको वो तौबा नहीं, ये मजाक हो जाएगा। इसलिए जिस गुनाह से आदमी तौबा कर रहा है उस गुनाह से मुकम्मल तौर पर अलग होना ज़रूरी है। तीसरी शर्त यह है कि जो गुनाह किया है उस गुनाह पर शर्मिंदगी का इजहार करे, शर्मिंदगी महसूस करे। ऐसा नहीं कि ढिठाई के साथ सीना तान करके तौबा भी करे और गुनाह भी करे, तो ये मग़फ़िरत उसको नहीं मिल सकती है। नादिम हो, शर्मिंदा हो, अल्लाह के हुजूर जो है वो शर्मिंदगी महसूस करे, तो ये शर्त, तीसरी ये शर्त हो गई। चौथी शर्त कि ठोस इरादा करे कि जिस गुनाह से तौबा किया है उस गुनाह की तरफ लौट करके ना जाए। ठोस इरादा करे कि जिस गुनाह को छोड़ा है उसकी तरफ ना जाए। पांचवी शर्त कि अगर हुकूकुल इबाद से अगर वो तौबा कर रहा है, जैसे चोरी करता था या किसी का गसब किया हुआ है उससे वो तौबा करना चाहता है, तो ऐसी हालत में चाहिए कि जिन के हुकूक वो गसब किए हुआ है या चोरी किया हुआ है वो साहिब हक को लौटा दे, वो साहिब हक को वो सामान लौटा दे। अगर साहिब हक नहीं मिल रहा है या उस तक पहुंचना मुश्किल है तो उसकी तरफ से वो माल सदका कर दे, वो उसको इंशाअल्लाह ताला सवाब मिलेगा। किया अल्लाह या उसकी इज्जत के खिलाफ कहीं पे गुफ्तगू किया है तो उससे जो है आज ही छुटकारा पा ले, क़यामत के दिन आने से पहले, कि उस दिन न दीनार है न दिरहम है। और अगर कोई नेक अमल उसके पास होगा तो उस जुल्म के बराबर उससे नेक अमल लिया जाएगा, और अगर उसके हसनात नहीं होंगे तो इसके गुनाह उस पर थोप दिया जाएगा। ये बुखारी शरीफ हदीस नंबर 2449। छठी शर्त है कि इदराकुल वक्त अल मखसूस लिक़बूल तौबा,
کہ तौबा जो कर रहा है तो वो खास वक्त में करे, मुहद्दद वक्त में तौबा करे, मुहद्दद वक्त में तौबा करे। और ये वक्त दो तरह का, एक खास वक्त और एक आम वक्त। खास वक्त जो हर आदमी के लिए है, हर बंदा के लिए है, उस वक्त के आने से पहले उसके ऊपर तौबा करना ज़रूरी है, उस वक्त से आने से पहले तौबा करना ज़रूरी है। वो कब वक्त है? मरने से पहले, मरने से पहले वो तौबा कर ले। अल्लाह तबारक तआला फरमाता है वलैसति तौबतु लिल्लज़ीना यअमलून अस्सय्यात हत्ता इज़ा हज़र अहदहुमुल मौत क़ाल इन्नी तुब्तु आन, कि उस शख्स के लिए तौबा नहीं है जो गुनाह करता है यहाँ तक कि जब उस पर मौत आती है तो कहता है कि मैं अभी तौबा कर रहा हूँ। तो ऐसे लोगों की तौबा कबूल नहीं होती है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नल्लाह यक़बलु तौबतल अब्द मा लम युग़रग़िर, कि अल्लाह तबारक व तआला बंदे की तौबा कबूल करता है उस वक्त तक जब तक कि उसे गरगरा ना हो, यानी मरने से पहले जो हलक में जो जान अटक जाती है, गरगरा होता है, तो उस वक्त तक, उससे पहले अगर तौबा किया तो ठीक है, लेकिन गरगरा आ गया और उसे तौबा कर रहा है तो उसकी तौबा कबूल नहीं होगी। ये तिरमिजी शरीफ हदीस नंबर 3537, और इमाम तिरमिजी ने हसन गरीब कहा और शेख अलबानी ने इसको हसन कहा है, और ये हदीस आपको इब्न माजा में भी मिलेगी। मैं फेसबुक देखने वाले भाइयों से गुजारिश करूंगा कि कुछ डिस्टर्ब हो गया था, तो जो सवालात किए हैं फिर आप रिपीट करें, बीच में फेसबुक रुक गया था, तो जो आप सवालात उधर कर चुके हैं वो मुझसे दूसरे फाइल में चला गया है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग उन सवाल को फिर कॉपी करके अभी जो मैं कर रहा हूं इस पर आप लोग उसको भेजने की कोशिश करें। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। वो एक आदमी का कॉल आ गया था जिसकी वजह से डिस्टर्ब हो गया, और आप उसको फिर से भेजें, इंशाअल्लाह तबारक तआला उसका जवाब दिया जाएगा। अच्छा, दूसरा वक्त आम वक्त है सभियों के लिए, और वो ये है कि सूरज पश्चिम से तुलू होने से पहले उसे तौबा करना चाहिए, तौबा करना पड़ेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इन्नल्लाह अज़्ज़ा वजल यबसुतु यदहु बिल्लैल लियतूबा मुसियन नहार व यबसुतु यदहु बिन्नहार लियतूबा मुसियल लैल हत्ता ततलु अश-शम्स मिन मग़रिबिहा, कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला अपना हाथ रात में फैलाता है ताकि दिन में गुनाह करने वालों की तौबा कबूल करे, और अल्लाह तबारक व तआला दिन में अपना हाथ फैलाता है ताकि रात में गुनाह करने वाले की तौबा कबूल करे, यहाँ तक के सूरज पश्चिम से तुलू हो जाए। तो सूरज जब तक पश्चिम से तुलू नहीं होगा उस वक्त तक बंदे की तौबा कबूल होगी, और उससे पहले अगर किसी ने तौबा किया तो उसकी तौबा कबूल नहीं होगी। ये मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 2759। इन सारी तफासिल से साइल को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। देखिए, अफसोस की बात यह है कि बहुत सारे भाइयों के सवालात आए हुए थे फेसबुक पे, लेकिन डिस्टर्ब होने की वजह से वो दूसरा चालू करना पड़ा और वो बंद हो गया, वो दूसरी तरफ है। मुमकिन है मैं उसको तलाश करके जवाब दे दूं, लेकिन मैं चाहता हूं उन भाइयों से कि वो सवालात फिर रिपीट करें। अगर वो मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो वो सवालात फिर रिपीट करें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला उनके सवालात के जवाब दिए जाएंगे। मेरे भाइयों दोस्तों, ये प्रोग्राम आप जनक नंदनी FM 95.5 मेगाहर्ट्ज़ पर समाअत फरमाते हैं, और आज का नंबर है 041-590-239 041-590-239। इस पर आप कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं और अपने सवालात पा सकते हैं। इस पर जुड़ गए हैं मोहम्मद मतीउर रहमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, दूसरा सवाल जो व्हाट्सएप पर आया हुआ है कतर से, वो ये है कि आजकल नौजवानों को किस तरह दीन के कामों में लगाया जाए, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी ने सबको बर्बाद कर रखा है। शकील रैन कतर। जवाबन अर्ज है कि सबसे पहली बात यह है कि बच्चों को दीन की तालीम दिलाएं, बच्चों को दीन की तालीम दी जाए। दीन से दूरी ही की वजह से ये सारी मुश्किलें सामने आती हैं। एक बात कि दीन की तालीम दिलाएं, दूसरी बात
اللہ تبارک و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیز اسلام کی حقانیت اور پھر ان سے محبت اور جانثاری کی تعلیم دیں، ان سے محبت اور جانثاری کی تعلیم دیں، آخرت اور جہنم و جنت پر یقین دلوائیں، غلط صحبت سے دور رکھیں، برائی سے دور رہنے اور نیکی کی راہ پر چلنے کی تلقین کرتے رہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ والدین کو چاہیے کہ بچوں کی اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کچھ نہ کچھ سدھار ضرور ہوگا۔ جاسم احمد انسان جب انجانے جاسم احمد انسان جب انجانے میں شرک کر لے گا تو کیا کرے؟ انجانے میں کیسے شرک ہوگا؟ ہاں، اگر اس کو معلوم نہیں ہے اور شرک کر لیا تو اس پر توبہ واجب ہے، توبہ کرنا ضروری ہے، اور صدق دل سے جو ہم نے توبہ کے شروط بیان کیے ہیں ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے توبہ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے گر گرائیں اور زیادہ سے زیادہ خیر کا کام کریں، توحید کا کام کریں، تب جا کر کے اس کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ شرک سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے۔ محمد صغیر عالم، السلام علیکم شیخ، سوال ہے کہ اسلام میں کلمہ پڑھنے والے مسلمان سب بھائی ہیں، تو بریلی، دیوبندی، وہابی کا یہ مسئلہ ہے کہ ایک دوجے میں شادی نہیں کرنا چاہیے، ایسا کہنا صحیح ہے؟ جواب دے کر شکریہ کا موقع دیں۔ دیکھیے صغیر بھائی، ہر کلمہ پڑھنے والا جو ہے مسلمان نہیں ہوتا ہے، کلمہ تو پڑھے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ شرک کرتا ہے، تو شرک کرنے والا یہ 1000 بار کلمہ پڑھے اور 1000 بار نماز پڑھے، حج کرے، صدقہ خیرات کرے، لیکن اگر وہ شرک کر رہا ہے، شرک اکبر، تو وہ مشرکین اور کافروں کی صف میں سے ہے، اس سے شادی بیاہ کرنا اور اس کے جنازہ کی نماز پڑھنا، سلام کلام کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر ایک بندہ، سن لے آج خلاصہ، اگر ایک بندہ ہے جو بہت نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، ہمیشہ قرآن کی تلاوت میں لگا رہتا ہے، ہمیشہ جو ہے دین کے کاموں میں لگا رہتا ہے، لیکن وہ قبروں کا طواف کرتا ہے، غیر اللہ سے مانگتا ہے، اور اللہ سے جو کام ہونا چاہیے اللہ کے لیے خاص ہے وہ غیر اللہ سے کر رہا ہے، تو اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی، ساری کی ساری عبادت رائگاں ہیں، اور وہ اللہ کے نزدیک کافروں اور مشرکوں میں سے ہے۔ تو ایسے لوگوں سے شادی بیاہ کرنا، ایسے لوگوں کو سلام کلام کرنا یہ قطعاً جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں۔ شرک اکبر کرنے والے لوگوں سے جو ہے شادی بیاہ کرنا، سلام کلام کرنا، اس کا ذبیحہ کھانا، یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کو دھیان میں رکھنا بہت ہی ضروری ہے، ان چیزوں کو دھیان میں رکھنا بہت ہی ضروری ہے میرے بھائیو دوستو۔ تو اس لیے شرک سب سے اہم ہے۔ اگر کوئی انسان بہت بڑا پاپی ہے، چوری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، سارا گناہ کرتا ہے، لیکن اگر وہ شرک نہیں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف کر سکتا ہے اور معاف کر کے جنت میں داخل کر سکتا ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے توبہ کے باب میں ساری باتیں میں نے بیان کی ہیں۔ تو اس لیے میری گزارش ہے سامعین کرام سے کہ شرک کرنے والوں سے آپ شادی بیاہ نہ کریں، ان سے دور رہیں، اسی میں ہماری اور آپ کی بھلائی ہے۔ اللہ اعلم بالصواب۔ پھر میں گزارش کروں گا کہ اس سے پہلے والی فائل میں، پیج میں میں لائیو تھا لیکن کسی وجہ سے وہ بند ہو گیا ہے، تو اس میں جو ابھی کھلا ہے اس میں آپ لوگ سوال کریں اور اس میں آپ لوگ جڑیں، اور جو اس میں سوال کیے ہوئے تھے اس کو اس میں جو ہے کاپی کر کے لانے کی کوشش کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا جواب دیا جائے گا۔ تیسرا سوال جو واٹس ایپ سے آیا ہوا ہے کہ 3-4 بھائی ہیں اور باپ بعض بیٹوں کو حصہ دیتا ہے اور بعض کو نہیں دیتا، تو کیا بیٹا کیس مقدمہ یا گاؤں سماج میں پنچایت کے ذریعے اپنا حصہ لے سکتا ہے؟ شکیل رین قطر۔ جواباً عرض ہے
کہ یہ بات یاد رکھیں کہ میراث کی تقسیم موت کے بعد ہوتی ہے، کسی کی موت کے بعد میراث کی تقسیم ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو کچھ دے رہا ہے تو یہ ہدیہ کہلائے گا، تحفہ کہلائے گا، اور اس میں سارے بچوں کو برابر دینا ضروری ہے، اور کسی کو کم اور کسی کو زیادہ دینا قطعاً جائز نہیں ہے، یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ عن نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ ان اباہ اتی بہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی نحلت ابنی هذا غلاما، کہ نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ میرے ابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجھے لائے اور کہا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس بیٹے کو ایک غلام تحفے میں دیا ہے، ایک نوکر تحفے میں دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اکل ولدک نحلت مثلہ، کہ اپنے تمام بچوں کو تم نے اس طرح سے دیا ہے تحفہ؟ تو نعمان بن بشیر نے کہا کہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فرجع ہو، یہ غلام تم لوٹا لو، اس سے لے لو اور اپنے پاس رکھو، اگر دینا ہے تو سب کو دو۔ بخاری شریف حدیث نمبر 2586 اور مسلم شریف حدیث نمبر 1623۔ دوسری حدیث ہے عن حسین عن عامر قال سمعت النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما وهو علی المنبر، عامر کہتے ہیں کہ میں نے نعمان بن بشیر کو منبر پر کہتے ہوئے سنا کہ اعطانی ابی عطیتن، کہ مجھے میرے ابا نے تحفہ دیا۔ فقالت عمرۃ بنت رواحہ، تو عمرہ بنت رواحہ نے کہا کہ لا ارضى حتى تشهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اس تحفہ سے راضی نہیں ہوں گی جب تک کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہی نہ دے دیں۔ فاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، تو میرے ابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ انی اعطیت ابنی من عمرۃ بنت رواحہ عطیۃً، کہ عمرہ بنت رواحہ سے جو میرا یہ بیٹا ہے میں نے اس کو ایک جو ہے عطیہ دیا ہے، ایک تحفہ دیا ہے۔ تو فامرتنی ان اشہدک یا رسول اللہ، تو مجھے عمرہ نے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو گواہ بناؤں اللہ کے رسول۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اعطیت سائر ولدک مثل ھذا، کہ تو نے اپنے سارے بچوں کو اس طرح سے دیا ہے؟ قال لا، تو اس نے کہا نہیں۔ فاتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور اپنے بچوں کے درمیان انصاف کرو، اپنے بچوں کے درمیان انصاف کرو۔ قال فرجع فرد عطیتہ، تو وہ اپنے گھر آئے اور اس سے جو ہے وہ تحفہ، وہ ہدیہ لے لیا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر باپ کسی کو ایک کٹھا دے رہا ہے تحفہ میں تو سارے لوگوں کو دے، کچھ دے رہا ہے پیسہ ویسا تو سارے لوگوں کو دے، ایسا نہ کہ ایک بیٹا کو دے اور دوسرے بیٹا کو نہ دے، ایسا کرنا قطعاً جائز نہیں۔ اسی طرح وفات کے بعد تقسیم میراث قرآن اور حدیث کے مطابق عمل میں لانا ضروری ہے۔ ہاں اگر کوئی وارث نہ لے یا کم اپنا حصہ لے تو وہ اس کے اختیار میں ہے، اس پر کوئی زور زبردستی کی بات نہیں ہے۔ ایک بات اور سنیں، جیسا کہ سائل نے کہا ہے کہ کیس مقدمہ، تو کہتے ہیں کہ نیپالی قانون کے اعتبار سے اگر باپ پوری سمپتی کسی ایک بیٹا کو یا رشتہ دار کو رجسٹری کر رہا ہے تو دوسرا بیٹا قانونی راستہ اپنا سکتا ہے، یا اس کا حق ہے، اور جا کر کے مال پوت میں روکا کروا لے یا عدالت میں کیس کرے کہ ہمارا باپ جو ہے اپنی ساری سمپتی ہم کو نہ دے کر کسی دوسرے کو دے رہا ہے، تو اس طرح سے کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج اور کوئی قباحت کی بات نہیں ہے، کوئی مشکل کی بات نہیں ہے۔ لیکن مقدمہ کیس سے پہلے اس کو کیا جائے، سمجھایا جائے، عالم علماء کو لے جائیں اور باپ کو سمجھائیں کہ یہ کرنا قطعاً جائز نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے آپ سارے بچوں کو برابر حق دیں اور سب اس میں شریک ہیں آپ کے مال میں، تو ایسا نہ کہ کسی کو دیں اور کسی کو نہ دیں، آپ یہ گناہ لے کر کے کیوں اللہ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ مان گیا نصیحت سے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں مانا تو پھر آپ قانونی راستہ اپنائیں اور اسی میں آپ کے لیے بھلائی ہوگی۔ اللہ اعلم بالصواب۔ میرے بھائیو دوستو، آج کا نمبر ہے 041-590-239 041-590-239، اس پر آپ ڈائل کر کے اپنے سوالات رکھ سکتے ہیں
और जवाबात पा सकते हैं। चौथा सवाल जो आया है फेसबुक पर कि शादी के लिए घर से निकलने से कबल 2 रकात नमाज पढ़ना कैसा है। अब्दुल राज़िक हरलाखी। बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि शादी करने के लिए जब निकलते हैं तो 2 रकात मस्जिद में नमाज पढ़ लेते हैं और तब निकलते हैं, तो ऐसा करना कैसा है। ये अब्दुल राज़िक हरलाखी से सवाल करते हैं। मेरे भाई दोस्तों, इसको बहुत सारे लोग कहते हैं सलातुल हाजा, हाजत वाली नमाज। हाजत वाली नमाज, तो लफ्ज़ सलातुल हाजा, हाजत वाली नमाज कहना ये किसी सही हदीस से साबित नहीं है। हाँ, अलबत्ता अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, कि सब्र के ज़रिए से और नमाज के ज़रिए से जो है मदद तलब करो। तो इस आयत के पेश नज़र अगर कोई शख्स किसी हाजत पे जा रहा है, सफ़र पे जा रहा है, या कोई नेक काम करने की जो है तमन्ना रखे हुआ है, उससे पहले अगर 2 रकात नमाज पढ़ा और उसने दुआ की उसमें कि अल्लाह ये काम हमारे लिए भलाई का ज़रिया बना दे, तो उससे कोई मुश्किल की बात नहीं है। इसी तरीके से हदीस में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आया है कि जब भी आप पर कोई परेशानी लाहिक होती या आप किसी काम में परेशान हो जाते तो नमाज की तरफ दौड़ते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते, तो उससे दिल को इत्मीनान मिलता, सुकून मिलता। तो इस हदीस से भी बहुत सारे उलमा ने कहा है कि अगर इस तरह कोई करे तो कोई मुश्किल की बात नहीं है। इसी तरीके से एक और हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अगर कोई बंदा अच्छी तरह से वज़ू करता है और वज़ू करने के बाद अच्छे अंदाज से नमाज पढ़ता है और नमाज पढ़ने के बाद वो अल्लाह तबारक व तआला से अपने लिए मग़फ़िरत तलब करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जो है उसकी मग़फ़िरत कबूल करता है और उसको बख्श देता है। तो इन अहादीस से को मद्देनज़र रखते हुए अगर कोई शख्स शादी के लिए जा रहा है और अगर वो 2 रकात नमाज पढ़ ले और उस 2 रकात के बाद कहे कि अल्लाह इस सफ़र को, इस शादी को हमारे लिए मुबारक बना, और जो नई बीवी हमारे घर में आ रही है अल्लाह तो उसको बाबरकत बना, तो इस तरह इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन इसको अगर कोई आदत बना ले और ये कहे कि ये पढ़ना ज़रूरी है, और कभी नमाज पढ़ा नहीं, मस्जिद का मुंह नहीं देखा और उस दिन जा कर के 2 टोक मार दिया कौवे की तरह से, तो ये एक मजाक हो जाएगा, खुला मजाक है। ये खुला मजाक है और इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कभी आपने नमाज नहीं पढ़ा और जब शादी करने के लिए जा रहे हैं तो नमाज पढ़ रहे हैं लोगों को दिखलाने के लिए, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर इसको कोई वाजिब समझ रहा है तो ये सरीह बिदअत हो जाएगी, ये बिदअत के ज़िम्न में आ जाएगा। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। मेरे भाइयों दोस्तों, फेसबुक वाले आईडी वाले भाई से, NID वाले भाई से गुजारिश है कि आप जो उस फाइल पे सवालात किए हैं, इस फाइल पे भी सवालात करें। वो जो है गुजर गया, इंशाअल्लाह तबारक तलाश करके दोनों को एक साथ जोड़ करके इसको यूट्यूब बनाया जाएगा। और हमारा यूट्यूब है सदाए हक। आप लिखेंगे, सर्च करेंगे तो हमारे सारे उलमाए कराम के खिताबात उसमें आ जाएंगे और वहीं जा करके आप सारे लोगों की तकारीर और ये सवाल जवाब का प्रोग्राम आप समाअत फरमा सकते हैं। और इस यूट्यूब चैनल को हमारे भाई शकील रायन साहब जो कतर में हैं, वो बेचारी बड़ी मेहनत से डाउनलोड करके और बड़ी मेहनत से इसमें जो है कोशिश करके ये यूट्यूब चैनल बनाते हैं और सबको जो है उसमें शामिल करते हैं। अल्लाह तबारक तआला उनकी मेहनत को कबूल फरमाए, आमीन। मेरे भाइयों दोस्तों, अब्दुल राज़िक हरलाखी का दूसरा सवाल है कि शादी के वक्त उपटन लगाना कैसा है। शादी के वक्त उपटन लगाना कैसा है, खासकर लड़का को। देखिए, एक रस्म है, ये रस्म बना लिया है लोगों ने, इसकी कोई हकीकत नहीं है। हाँ, औरतें अगर लगा रही है तो कोई मुश्किल नहीं बात है, इसलिए कि औरत तो खूबसूरती ही के लिए या ज़ेब ज़ीनत ही के लिए पैदा की गई है, तो उसमें कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर लड़का जो है लगा रहा है तो बेहतर है कि न लगाए, और इसलिए कि शादी के रस्म रिवाज में शामिल कर दिया है। और ये हुर्मत का दर्जा उस वक्त ले लेता है कि अगर कोई गैर महरम, जैसे भाभी है या चचेरी बहन है या खलेरी बहन है या जो है फुफेरी बहन है, ये सब आकर के उस नौजवान लड़का के बदन में टच करके और उसको उपटन लगाती हैं, तो ये कतअन हराम है, ये बिल्कुल हराम है।
اس ये जायज़ ही नहीं है किसी भी सूरत से। लेकिन आजकल तो माशाल्लाह लोग कहते हैं कि शादी ब्याह में हर चीज़ जायज़ है, जिससे मजाक कर लें, जिससे ठट्ठा कर लें, सारी चीज़ें जो है जायज़ है शादी ब्याह में। तो ऐसा समझना और ऐसा करना ये कतन जायज़ नहीं है। तो इसलिए मेरे भाइयों, ये उपटन तुपटन, ये फुकटन, ये सब रस्म व रवाज है जो लोगों ने बना लिया है। इससे मर्द हजरात को दूर रहना चाहिए। इसी तरीके से माशाअल्लाह बहुत सारे लोग जो है मेहंदी से अपने हाथों को सजाते हैं और जो है नाखून रंगते हैं, पूरे पाँव में मेहंदी लगाते हैं और क्या क्या गुल खिलाते हैं। तो मर्दों के लिए ये चीज़ जायज़ नहीं है, मर्दों के लिए ये चीज़ जायज़ नहीं है। मर्दों के लिए मेहंदी लगाना सिर्फ बालों में, सफ़ेद बालों में लाल मेहंदी लगाना जायज़ है, या दवा के तौर पर अगर कहीं पर लगा रहा है इलाज के लिए तो वो जायज़ है। उसके अलावा और तीसरी शक्ल में कहीं जायज़ नहीं है। अल्लाह आलम बिस्सवाब। मेरे भाइयों दोस्तों, वक्त गुजरता जा रहा है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग सवालात करें और जवाबात पाने की कोशिश करें और हमसे जुड़ें। इंशाअल्लाह तबारक ताला हम सवाल के जवाब देंगे। अब सिर्फ हमारे पास 5-7 मिनट बाकी रह गए हैं। मोहम्मद मतीउर रहमान, गुस्ल खाना में गुस्ल करते ट्यूबवेल लगाकर वज़ू करके बाहर आने पर वज़ू होगा कि क्या? हाँ, वज़ू हो जाएगा। आपने अगर गुस्ल किया और गुस्ल के बाद आपने कपड़ा पहन लिया, कपड़ा पहन के आपने गुस्ल खाने ही में वज़ू कर लिया तो कोई मुश्किल की बात नहीं, आपके वज़ू में कोई खलल नहीं है और आपका वज़ू सही है, दुरुस्त है, उसमें कोई मुश्किल की बात नहीं है इंशाअल्लाह तबारक व तआला। लेकिन यह है कि गुस्ल खाना में आप ज़ुबान से ज़ोर से बिस्मिल्लाह न पढ़ें, बल्कि दिल ही दिल में बिस्मिल्लाह पढ़ के आप गुस्ल करें, वज़ू करें और जब बाहर निकल जाएं तब वज़ू की जो दुआ है वो दुआ आप करें। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। ये मोहम्मद मतीउर रहमान साहब का फेसबुक पे सवाल था। मेरे भाइयों दोस्तों, रेडियो वाले भाई सब जो हैं, जो सुन रहे हैं, वो कोई सवाल नहीं आ रहा है। पता नहीं क्या वजह है, क्या बात है, अल्लाह आलम। अच्छा, एक हमारे शेख हैं शफ़ीउल्लाह अब्दुल हकीम मदनी साहब, माशाअल्लाह उनकी तहरीर जो है सुलगते हुए मौजू के ऊपर बहुत ज़्यादा आते हैं और ख़ास कर जो बिदआत व खुराफात हम मुसलमानों के दरमियान राइज हैं, छोटी छोटी बिदआत जिसको लोग धड़ल्ले से दीन का नाम देकर और दीन समझ करके लोग कर रहे हैं, तो उन्हीं के कुछ मज़ामीन में से मैं चंद आप लोगों की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, जहाँ तक वक्त साथ दे, और नहीं तो आइंदा भी पेश करूँगा। पहला क्या है, क्या दौरान आज़ान अंगूठों के साथ आंखें चूमना जायज़ है? बहुत सारे लोग देखेंगे कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आएगा तो ऐसे थूक करके आंख पर लगाते हैं और चूमते हैं, उसको ऐसे चूमते हैं। तो क्या ऐसा करना जायज़ है? देखिए मेरे भाइयों दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मेरा नाम आए तो उस वक्त मुझ पर तुम दरूद भेजो। एक बार दरूद भेजोगे तो अल्लाह तबारक तआला तुम पर 10 बार रहमतें नाजिल फरमाएगा, 10 बार रहमतें नाजिल फरमाएगा। इस बिदअत के इजाद से, ये अंगूठा चूमने की बिदअत की इजाद से, उस अच्छी चीज से इंसान महरूम होकर के रह गया है। इसलिए कहा गया है कि जहां जिस जगह बिदअत रवाज पाएगी वहां से एक सुन्नत उठा दी जाएगी, वहां से एक सुन्नत उठा दी जाएगी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें छोटे में, या अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम वारिक पढ़ें। अंगूठा चूमने उमने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए शेख साहब ने क्या जवाब लिखा है। अक्सर देखने में आया है कि मुब्तदईन के आवाम क्या बल्कि उनके उलमा भी, मुब्तदईन के आवाम जब मुअज्जिन से अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की आवाज़ सुनते हैं तो वो पहले अपने दोनों हाथों के अंगूठों को चूमते हैं, फिर उसे आंखों पर लगाते हैं। यह एक ऐसी बिदअत है जो कि सुन्नत खैरुल अनाम यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के बिल्कुल मुखालिफ है। क्योंकि मसनून तरीका तो यह है
कि आज़ान का जवाब दिया जाए, यानी जिस तरह मुअज्जिन कलमात आज़ान कहता है सुनने वाला भी उन्हीं कलमात को दोहराए, जैसा कि अहादीस सही है इस पर गवाह हैं। लेकिन मुब्तदईन यानी अहले बिदअत लोग इस मसनून तरीक़ा को तर्क करके और अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने की बजाय मरहबन बिहबीबी व कुर्रतु ऐनी मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, देखिए यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से रासी नहीं हुआ और अपना खुद ईजाद कर लिया। मरहबन बिहबीबी व कुर्रतु ऐनी मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को कहते हुए अपने अंगूठे को चूमते हैं, हालांकि इसके सबूत में उनके पास कोई सही हदीस तो क्या हसन दर्जा की भी रवायत नहीं है। इस सिलसिले में जो भी बयान किया जाता है उसकी हैसियत एक किस्सा की तरह दास्तान से बढ़कर और कुछ नहीं है। अंगूठे चूमने के सबूत में मुस्नद फिरदौसुल अखबार के हवाले से एक हदीस बयान करते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक मुअज्जिन से कलमा अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह सुनकर अपनी शहादत वाली उंगली को चूम कर अपनी आंखों को लगाया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मेरे इस प्यारे की तरह करे उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो जाएगी। एक रवायत ये पेश करते हैं दलील में। दूसरी क्या करते हैं, दूसरी रवायत खिज़र अलैहिस्सलाम के हवाले से बयान किया जाता है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने मुअज्जिन को यह कहते हुए सुना कि हुजूर अलैहिस्सलाम के हवाले से, हुजूर अलैहिस्सलाम यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से पेश करते हैं कि जिसने मुअज्जिन को यह कहते हुए सुना अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह और उसने ये कहा कि मरहबन बिहबीबी व कुर्रत ऐनी मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, फिर अपने अंगूठों को चूमे और अपनी आंखों से लगाए, लम यरमद अबदा, तो वो शख्स कभी आंख की तकलीफ में मुब्तला नहीं होगा। देखिए ये रवायत बिल्कुल ज़ईफ़ है। देखिए ज़ईफ़ा जो है हदीस नंबर 73। इमाम सखावी इस हदीस को नकल करने के बाद रकम तराज हैं, वला यसिह्हु फिल मरफू मिन कुल्ल हादा शै, कि इस सब में यानी इस मौजू पे कोई भी मरफू रवायत साबित नहीं है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। देखिए अल मकासिदुल हसना सफ़ा नंबर 384 और अल मसनू फी मारिफतिल हदीसिल मौजू हदीस नंबर 300, कश्फुल खिफा सफ़ा नंबर 2 जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 206। इमाम जलालुद्दीन सुयूती लिखते हैं कि वल अहादीस अल्लती रुवयत फी तक़बीलिल अनामिल व जअलहा अलल ऐनैन इंद समाई इस्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल मुअज्जिन फी कलिमतिश शहादा कुल्लुहा मौज़ूआत, यानी वो अहादीस जिनमें मुअज्जिन से कलमा शहादत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनने के वक्त उंगलियां चूमने और आंखों पर रखने का जिक्र है, सब की सब मनगढ़ंत और जाली हैं। तैसीरुल मकाल बहवाला फतावा नज़ीरिया जिल्द 1 सफ़ा 284। दूसरी रवायत जो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करके बयान की जाती है उसके बारे में मुल्ला अली कारी हनफी फरमाते हैं कि बिसनदिन फ़ीह मजाहिलो माइन क़तायही, यानी इसकी सनद मुनक़ता है और कई रावी दरमियान में मजहूल हैं। देखिए मौज़ूआत कबीर सफ़ा नंबर 108। अंगूठे चूमने की जिस कदर रवायात बयान की जाती हैं वह तमाम की तमाम मनगढ़ंत बिला सनद और मजहूल लोगों से मरवी हैं और उनमें से एक भी सही नहीं जो काबिल इस्तिदलाल हो। मुब्तदईन यानी बिदअतियों का बुनियादी इस्तिदलाल ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी रवायत पर है, मगर हमारा यकीन है कि यह उनकी तरफ झूठी मंसूब की गई है। उसका वाज़ेह सबूत यह है कि ये किसी मुस्तनद हदीस की किताब में नहीं है। हाँ, बाज़ मुतअख़्खरीन ने बग़ैर सनद के ज़िक्र किया है, लेकिन ये उनका वहम है और अवहाम को दीन में दाखिल करना जो है कम अक़ली ही नहीं बदतरीन जहालत है। अलगर्ज़ आज़ान के वक्त अंगूठे चूमने और आँखों से लगाने की कोई सही दलील नहीं है और न नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में और बाद में खैरुल कुरून में इसका सबूत मिलता है। इसी वजह से इस अमल को बाद के उलमा ने नाजायज़ और बिदअत बताया है। यह मनगढ़ंत होने की वजह से बातिल और मरदूद है। तो खुलासा कलाम ये हुआ
کہ آذان کے وقت ہو یا کسی بھی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آئے تو اس وقت ہم درود پڑھیں، اور آذان کے وقت جب مؤذن آذان دے تو جتنے کلمات ہیں وہ سارے کلمات ہم مؤذن ہی کی طرح کہیں، الا یہ کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی جگہ پہ ہم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں۔ اس کے علاوہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسری بات نہیں سکھلائی کہ جب میرا نام آئے تو انگوٹھا چومو یا جو ہے آنکھ پر لگاؤ، یہ کرو وہ کرو، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ اعلم بالصواب۔ میرا وقت ختم ہو گیا، کسی کا سوال بھی نہیں ہے، اور بھی شیخ شفیع اللہ صاحب کے کچھ اور بھی چیزیں ہیں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اگلے پروگرام میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ سب سامعین کرام کو سیدھا راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک دنیا میں رکھے قرآن اور حدیث پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نکلے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی نبی وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فیس بک والے ساتھیوں سے معذرت خواہ ہوں کہ بیچ میں جو ہے کٹ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے میں معذرت خواہ ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔